Ind AS 19. So Ind AS 19 is employee benefits expense. So now what is employee benefits expense? So whatever the consideration we are giving to our employees for the service they are rendering to us, that all consideration or that all expenses will going to be classified under employee benefits expense. So now employee benefits expense are of the following types, like short-term employee benefits. Now what will going to be include over here is ki whatever the consideration or expense we are going to pay to the employee within the 12 months from the balance sheet date, that all consideration and expense will be termed as a short-term employee benefits. For example, salary and wages, which we generally have to pay within 12 months to our employees. Okay. Then there is a post-employment benefits. Now what is post employment benefit is that ki whatever the amount we're going to pay to our employee after their retirement, that all consideration or that all expense will going to be termed as a post employment benefits. For example, PF, gratuity, pension. Then there is a termination benefits. Now suppose one company has suddenly declared layoff, so in that case employees will need time to find a new job, right? So what company do is they give financial assistance to their employees so they can meet their expenses till the time they find a new job. Okay, so that kind of financial assistance or that kind of expense, okay, which they are giving on termination will be classified under termination benefits. For example, retrenchment compensation. Okay, then there is a long term employee benefits. So the expense which we are going to pay to our employees after 12 months will be classified under long term employee benefit. So now to understand every concepts which are there in this NDS, we have to keep accrual concept back in our mind, because by that we can easily understand every concepts. Okay, so now here accrual concept is like ki whatever the expenses we are paying to our employees for the services they are rendering to us, that all expense will be recorded in the period in which we are receiving service from the employees. मतलब मैंने जो सर्विस ली है एम्प्लॉय से ये पीरियड में, उसके रिलेटेड जितना भी कंसिडरेशन मुझे वो एम्प्लॉय को देना है वो मैं वही पीरियड में रिकॉर्ड करूंगी जिस पीरियड में मैं सर्विस ले रही हूँ. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है. सो नाउ हियर विल सी basic journal entries, like when we are paying salary to the employees we make journal entries like the salary account to bank account, and when we have to accrue the salary then we make salary account to salary outstanding account. And if we pay salary in advance, so if we pay expense in advance we treat it as an prepaid asset. So in similar way we will make an entry like prepaid salary account to bank account. So what is bonus? Company generally give bonus to the employees when they meet condition which is there to get the bonus. For example, company has put the condition among the employees that if company will achieve more than 2 crore profit during the year, then employees will going to get a bonus. Okay. So how will going to make accounting entries is like when the condition for the bonus is met. So when the condition is met for the bonus, at that time we'll create a provision like bonus account to provision for bonus account. And when we have to pay the bonus, at that time we'll then going to reverse the provision and then we'll credit our bank account. Okay, so now we're going to understand this concept with questions. So there is SL Limited, and SL Limited is having 350 employees, and there is a staff attrition rate observed during the past 10 years, and that is 6%. Attrition rate means the person, matlab the employees who are leaving the company. So this is a leaving rate. So this much percent of employees are leaving every year. Okay. Then there is like ESSER provides the following benefits to all its employees. Annual bonus during the past 10 years.
So here they have given the benefits which we are paying to our employees during the past 10 years. Among that, we are also paying bonus. Okay, so here now there is a further information related to the bonus. So Acer paid bonus to all employees who were in the service during the entire financial year. So this is the main condition for the bonus. Um, bonus will going to be paid only to the employees who are there throughout the financial years. Okay, so that is one of the important condition, and we'll going to keep in this mind when we are doing accounting of this. So bonus was paid in June following the financial year end. So whatever the bonus which is there for the financial year, we are paying that bonus in June. Okay, so this is the condition. Um, so if we'll see now, so in 2021-22, bonus per employee was 1,25,000. Okay, and SL Limited used to increase amount of bonus based on the official inflation rate, which is 8.5%. So this is the inflation rate. So what company do is ki whatever the bonus they are paying to employee, they also increase that bonus every year as per the inflation rate. So inflation rate over here is 8.5%. So the bonus which we're going to give next year will going to increase that as per the inflation rate. But there is no legal obligation to increase the bonus rate, but company voluntarily wants to do that, and they are doing. How will SL Limited recognize liability and expense for this? So now we have to show ki what amount of liability and expense SL Limited will going to recognize on a balance sheet date. Okay, so and we have to matlab suggest the accounting treatment. So see what we'll going to do over here is that ki first we have to keep in our mind attrition rate, which is 6%. So what we're going to do is ki the whatever the amount of number of employees we are having, we're going to less that number of employees by attrition rate. So we are having 350 employees. Okay, so we're going to less uh, like 6% of 350 employees. So number of employees who will meet the condition will be 329 employees during the year. So now we have to see the bonus now. So for bonus we have take the same bonus which is for 2021-22, which is 1,25,000. Okay, and then we have increased that bonus with inflation rate, which was 8.5%, and bonus for the next year came to be like 1,35,000, and then we have calculated total bonus. So bonus per employee into total number of employees. So this is our total bonus. And now here there is a journal entry. First we'll make the provision. This much will be our employee benefit expense, and in June 23, when we are paying it, we're going to reverse it. Suppose company has given one condition to the employees, if all employees are working together as a team, and if company is achieving profit target of 2 crore during the year, then on the profit, employees will also going to get some share. Okay, so for example, company has told ki employees will get 10% share on the profit. Okay, so this is known as a profit sharing plan. So company generally do this to make employee feel the honor of the company, so they do this kind of things. Okay, so now suppose company has achieved uh, 2 crore 10 lakhs profit during the year. So now we have promised to the employees that we're going to give 10% um, profit share. So we'll calculate 10% on 2 crore 10 lakhs. So we'll get 21 lakh bonus amount, and we have made a promise that this bonus will going to be distributed among all the employees. Okay, so then we'll going to divide it by 100. Okay, and then we'll get bonus per employee. Now ये जो बोनस है वो वही एम्प्लॉय को मिलेगा जो कंपनी में कंटिन्यू पूरे 1 साल तक रहेगा। ठीक है, तो व्हाट कंपनी डू इज, अभी कंपनी को पता नहीं है कि कितने मतलब 100 में से कितने एम्प्लॉयज चाहेंगे, बट
ऑन एस्टिमेशन उनको ऐसा पता लग जाता है कि जैसे हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि जहाँ पे उनको एट्रिशन रेट ऑलरेडी उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ था, ठीक है। तो कंपनी क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉयज का नंबर तो वो डिक्रीज इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, उनको तो जितने एम्प्लॉयज है उतने उतने के हिसाब से उनको बोनस तो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना, जैसे यहाँ पे 10% था, वो लोग डिक्रीज कर देते हैं ताकि वो लोग फिर सही अमाउंट पे प्रोविजन बना पाए। ओके, तो ये होता है बोनस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, बट वो कंबाइंड कॉन्सेप्ट पे है, तो हम वो तब देखेंगे, ठीक है। Compensation. So leave compensation are a paid leaves which we give to our employees, and against that leaves we do not deduct salary of an employees. Okay, so leave compensation can be called as paid leaves, paid vacation, compensating absence. So these are the terms by which we called paid leaves. Okay, so leaves for which salary will not be deducted. So this kind of leaves like casual leaves, sick leaves, privilege leaves will going to be covered here. So leave compensation are of two types, matlab it is accumulating and non-accumulating, and further in accumulating it is vesting and non-vesting. Now what is difference between all this? अभी यहाँ पे क्या है कि vesting मतलब सपोज हमने एम्प्लॉयज को 10 पेड लीव्स दिया है, उसमें से एम्प्लॉयज ने सिर्फ 5 ही यूज की है ड्यूरिंग द ईयर, और 5 उनकी अनयूज्ड है, तो जो भी अभी अनयूज्ड 5 लीव्स है उसके अगेंस्ट हम लोग एम्प्लॉयज को कैश दे देंगे। सो दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटिंग वेस्टिंग paid leaves. Okay, leave compensation. Now what is non vesting accumulating? अभी एम्प्लॉयज की 5 अनयूज्ड लीव्स है, तो हम क्या बोल रहे हैं एम्प्लॉयज को कि ये जो तुम्हारी बची है लीव्स वो तुम अभी नेक्स्ट ईयर यूज कर लेना, ठीक है। तो दैट इज नॉन एज accumulating नॉन वेस्टिंग। ओके, the unused leaves can be carried forward to next year. Now, how will going to do journal entry of this? So, year in which unused leaves arise means this is the year where employees paid leave is unused. Then we're going to make entry in that same year. ओके, तो एम्प्लॉय की जो 5 अनयूज्ड लीव्स बाकी है, अगर ये साल में वो बाकी है, देन विल गोइंग टू मेक एंट्री अगेंस्ट इट। ओके, तो हम लोग उसका प्रोविजन क्रिएट करके रखेंगे लाइक लीव कंपनसेशन अकाउंट और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर लीव compensation account. Okay, in both the cases we're going to make same entry. अभी क्या होगा, when cash is paid in the next year, okay, तब हम लोग अपना प्रोविजन रिवर्स कर देंगे। अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग का लीव कंपनसेशन पेएबल, लीव कंपनसेशन पेएबल हम लोग हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है और पर एम्प्लॉयज जितनी भी अनयूज्ड लीव्स है वो लेंगे इनटू पर डे सैलरी। अभी पर डे सैलरी कैसे निकालेंगे, उनकी जितनी भी एनुअल सैलरी है डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज। अभी नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो रहते हैं ना, वो एक्सक्लूडिंग हम लोग का जो भी वीकली ऑफ होता है एंड जो नेशनल हॉलीडेज होती है उसको लेस करने के बाद कंपनी डिराइव करते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो ऐसे हम लोग सैलरी पर डे कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो, ये हो गया वेस्टिंग वाला केस जहाँ पे हम लोग कैश में सेटल कर रहे थे एम्प्लॉयज की अनयूज लीव्स। अभी यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे नॉन वेस्टिंग है, मतलब हमारा जो एम्प्लॉय है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा लीव्स। तो इसमें कैसे करेंगे, तो पहले तो प्रोविजन अभी जब भी अभी ये यहाँ पे जब नॉन वेस्टिंग के केस में जो भी एडजस्टमेंट होता है ना वो सैलरी अकाउंट के साथ होता है, ठीक है। बिकॉज हम कोई अलग से हम कोई अलग से कंपेंसेशन नहीं दे रहे हैं, मतलब कंसिडरेशन कुछ नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉय को अलग से। ओके, तो हमें उसको सैलरी में ही सेट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी एक्यूमुलेटिंग नॉन वेस्टिंग का केस है तब जो भी अमाउंट होगा वो सैलरी के साथ एडजस्ट होगा, बट अगर वेस्टिंग है तो नहीं होगा बिकॉज हम सैलरी के अलावा और कैश दे रहे हैं एम्प्लॉयज को। ओके, हम ये चीज को एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी यहाँ पे देखो सी ऐसी
जर्नल एंट्री होगी ये वाले केस में। और उसको कैलकुलेट ऐसे ही करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अनयूज्ड लीव्स इनटू सैलरी पर डे। अभी एग्जांपल समझ लेते हैं। अभी सपोज एक एम्प्लॉय है जिसका सीटीसी 15 लाख है। सीटीसी मींस कॉस्ट टू कंपनी। उसका टोटल वर्किंग डेज इज 300, पेड लीव्स 20 है, उसने यूज्ड 15 की है, तो उसकी अनयूज्ड कितनी है? 5। 5 दिन की अनयूज्ड लीव्स है। ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? ये फर्स्ट वाला केस जो है ना वो वेस्टिंग वाला है, मतलब हम लोग जितनी भी उसकी अनयूज्ड लीव्स है उसको कैश में सेटल करेंगे। ओके। तो कैसे करेंगे? पहले तो प्रोविजन करना है। 5 अनयूज्ड है और सैलरी पर डे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। 15 लाख की एनुअल सैलरी है डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज, तो 5,000 पर डे सैलरी आ रही है और इंटू 5 अनयूज्ड है, तो इतने का हम लोग ने प्रोविजन क्रिएट किया। अभी हमें उसको एनकैश करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉय को सैलरी भी देंगे और साथ में लीव का भी उनको कंपनसेशन दे देंगे। ओके, नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में ऐसी एंट्री होगी। अभी देखो ये वाले केस में जो नॉन वेस्टिंग है, जहाँ पे हमें सैलरी के साथ एडजस्ट करना है, तो अभी प्रोविजन तो सेम क्रिएट होगा, बट सेकेंड ईयर में एंट्री ऐसे होगी। ठीक है, तो सैलरी हम लोग जो है एम्प्लॉय की वो यहाँ पे 10 लाख आएगा। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर दी है मैंने शायद। इट इज 15 लाख माइनस हम लोग का ये, सो 14,75,000 आएगा। ओके, 75 से हम लोग अपना सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर हम लोग प्रोविजन रिवर्स करेंगे और फिर बैंक अकाउंट को हिट कर देंगे। ओके। तो नॉन वेस्टिंग के केस में ऐसे एंट्रीज होगी। ओके। अभी हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे सुंदरम प्राइवेट लिमिटेड हैज अ हेड काउंट ऑफ 100 एम्प्लॉयज और एज पर एम्प्लॉय पॉलिसी 30 कैजुअल लीव्स, आउट ऑफ विच 10 कैजुअल लीव्स में बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अभी देखो उनको कितनी लीव्स दी है? 30। ओके। और उसमें से सिर्फ वो 10 ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब उनको 20 तो यूटिलाइज करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो लैप्स हो जाएगी। ओके। और नेक्स्ट में 10 sick leaves, out of which 2 sick leaves may be carry forward as a paid leave. ओके, तो आप सिर्फ 2 लीव्स को ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब जो 8 लीव होगी वो आपको ड्यूरिंग द ईयर यूटिलाइज करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन एक्यूमुलेटिंग, और उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है और वो लैप्स हो जाती है अगर यूटिलाइज नहीं करोगे तो। ओके। फिर नेक्स्ट, एट मार्च 31st March 2021, the average unused entitlement is 5 days per employee. Okay, तो मार्च 2021 में 5 days unused है leaves, casual leaves, and 1 day is sick leave। तो अगर हम लोग पर एम्प्लॉय देखेंगे ऑन एन एवरेज बेसिस, तो 5 दिन की कैजुअल लीव अनयूज्ड है एंड 1 डे की सीक लीव अनयूज्ड है पर एम्प्लॉय। ओके। फिर नेक्स्ट, एक सेकेंड। On an average, it is found that number of such employees who would be claiming casual leave would be 30 and 10 employees will claim sick leaves। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि 30 एम्प्लॉयज जो है वो कैजुअल लीव्स अवेल करेंगे जो उन लोग की अनयूज्ड है, और 10 एम्प्लॉयज ऐसे है जो अपनी सिक लीव्स अवेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट ईयर। सो हमें अभी इसकी लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो वेरी इजी। देखो अभी देखो लीव्स जो है हम लोग टोटल 30 और 10 दे रहे थे। ओके, उसमें से हम लोग की एक्यूमुलेटिंग कितनी आएगी? 10, बिकॉज मैंने बोला था कि 30 में से वो लोग सिर्फ 10 ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी 20 लैप्स हो जाएगी। ओके, उनको यूज करनी पड़ेगी, वो उतनी फिर 20 कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ 10 ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी देखो हमें कैजुअल लीव में लग रहा है कि 5
दिन अनयूज्ड रहेगी, 10 पेड लीव्स में से वो लोग 5 यूटिलाइज करेंगे एम्प्लॉयज। ओके, और ऐसे कितने एम्प्लॉयज थे जो यूटिलाइज करने वाले थे? 30। तो इतने की हमारी लाइबिलिटी हो सकती है। सेम विद सीक लीव, 2 लीव्स हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उतना एम्प्लॉयज कितने थे? 10 एम्प्लॉयज थे। ओके, 100 employees who are entitled to 10 working days of paid sick leave for each year। तो एक एंटिटी है जहाँ पे कितने एम्प्लॉयज है? 100 एम्प्लॉयज है, और उनको 10 पेड लीव्स मिलेगी, सिक लीव्स। ओके, हर साल। अनयूज्ड सिक लीव में बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। तो आपकी जितनी भी अनयूज्ड लीव होगी ना, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 1 फाइनेंशियल ईयर तक। Sick leave is taken first out of the current year's entitlement and then out of any balance brought forward from previous year। तो इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी पेड लीव्स है करंट ईयर में, उसको पहले कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद आपकी जो एक्यूमुलेटिंग प्रीवियस ईयर की लीव्स होगी उसको उसके बाद कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फिर एज ऑन 31st मार्च द एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट इज 2 days पर एम्प्लॉय। तो 31st मार्च को पर एम्प्लॉय 2 days अनयूज्ड पेड लीव्स उनकी बाकी है, ठीक है। मतलब पर एम्प्लॉय ऐसा मान सकते हैं कि 2 दिन का उनका पेंडिंग है लीव्स, अनयूज 2 दिन का लीव्स, मतलब उनके पास अभी भी है, उन्होंने यूज नहीं किया है 2 दिन का। ओके, पेड लीव। तो ये ऑन एन एवरेज बेसिस बोला है उन्होंने। Based on the past experience, management expect that only 20% of the employees will use 1 day from the carry forward leave। और हमें ऐसा लग रहा है कि 20% एम्प्लॉय ऐसे रहेंगे जो अपना कैरी फॉरवर्ड वाला लीव यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पे सैलरी पर डे हमें दिया है, फिर हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है लीव कंपनसेशन एक्सपेंस दो केस में। फर्स्ट है कि अगर वो वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस होगा तो कितना हम एक्सपेंस बुक करेंगे, और दूसरा केस है कि अगर नॉन वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस होगा तो हम कितना एक्सपेंस बुक करेंगे। तभी देखो इसमें कैसे करेंगे। अभी वेस्टेड का मतलब क्या होता है कि उस जितनी भी हमारी अनयूज्ड लीव्स है उसके अगेंस्ट हमें कैश मिलेगा, ठीक है। और नॉन वेस्टेड का मतलब क्या होता है कि हम जितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे उतने प्रोपोर्शनेट का हमारे सैलरी से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तभी देखो वेस्टेड के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे, 100 एम्प्लॉय है एंड पर एम्प्लॉय 2 days का लीव है, और पर डे सैलरी है 2500। तो ये इसको ये डायरेक्टली कंसीडर करके उसका प्रोविजन बना लेंगे। अभी नॉन वेस्टेड के केस में क्या है, नॉन वेस्टेड में हम लोग देखते हैं कि कैरी फॉरवर्ड लीव्स कितना होगा। समझ आ रहा है? एक सेकेंड में बताती हूँ सॉल्यूशन के साथ। नॉन वेस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेस्टेड का ऐसा होता है कि जो भी लीव्स होंगे उसके अगेंस्ट आपको कैश मिलेगा, और नॉन वेस्टेड का मतलब क्या होता है कि आपको कैश नहीं मिलेगा, आप लीव्स को कैरी फॉरवर्ड करके और प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमारा सैलरी से एडजस्ट होता है, ठीक है। तो नॉन वेस्टेड के केस में हम लोग का कितना एक्सपेंस होगा वो हमें बताना है। तो तो क्वेश्चन ने क्या बताया है कि ऐसे 20% एम्प्लॉयज है जो अपनी प्रीवियस ईयर की लीव्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और वो है 1 डे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग नॉन वेस्टेड केस में एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। तो 100 एम्प्लॉयज है, उसमें से हमें लग रहा है कि 20% एम्प्लॉय कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितने दिन की कैरी फॉरवर्ड करेंगे? 1 दिन की, और सैलरी पर डे है 2500। so this is the solution for the question। Working for Infotech Limited, consider the following particulars। तो मिस्टर रजन की सैलरी कितनी है? 30 लाख। एंड फिर टोटल वर्किंग डेज इन 2020-21 कितना है? 300 days, right? Leaves allowed in 2020-21 as per company policy is 10 days। मिस्टर रजन को 10 days की पेड लीव्स मिलेगी, ठीक है।
लीव्स यूटिलाइज्ड बाय मिस्टर रजन इन 2020-21 8 डेज, उसको मिली थी 10 डेज की, उसने सिर्फ 8 डेज की यूटिलाइज की। The unutilized leaves are settled by the way of payment and accordingly carry forward of such leaves to the subsequent period is not allowed। तो इनका कैसा है केस, एक्यूमुलेटिंग वेस्टिंग वाला केस है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जितना भी अनयूज्ड आपका लीव्स होगा वो डायरेक्टली बाय द वे ऑफ पेमेंट सेटल्ड होगा एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे आप उसको, ठीक है। तो हम लोग वेस्टिंग वाले केस में कैसे करते थे अकाउंटिंग, यस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीव कंपेंसेशन अकाउंट, ओके। सो प्रोविजन बना देंगे एंड जब भी हम लोग पे करेंगे तो प्रोविजन को हम रिवर्स कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे हमें डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो सैलरी पर डे निकाल लेंगे, 30 लाख डिवाइडेड बाय 300 डेज, सैलरी पर डे निकल जाएगी। फिर अनयूज्ड लीव्स कितनी है, 2 है, ठीक है। तो सैलरी पर डे इंटू 2 करके हम लोग को अपना प्रोविजन का अमाउंट मिल जाएगा। बट एग्जाम में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम पहले तो सैलरी पर डे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये वर्क डेज वाला भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज कोई कोई क्वेश्चन में इसका हमें हेल्प हो सकता है, ठीक है। अभी ये वाला तो नॉर्मल क्वेश्चन है जहाँ पे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि 2 डेज जो है उसका वो अनयूज्ड लीव्स है और उसके ऊपर होगा। बट इन केस एग्जाम में अगर कुछ इसमें ट्विस्ट आ गया, ओके, तो उसको इजी करने के लिए हम ऐसा ही प्रेजेंट करेंगे कि वर्क टू बी डन बाय हिम टू गेट फुल सैलरी, ओके। तो अभी उसको कितना काम करना पड़ेगा पूरी सैलरी के लिए, वो है 300 माइनस 10, 10 जो है उसकी पेड लीव्स है, ठीक है। तो पेड लीव्स डिडक्ट करके वो आइडियली तो 290 डेज तक ही काम करेगा, तो इतने डेज के लिए हम उसको 30 लाख की सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। अभी आइडियली उसको इतने दिन तक वर्क करना चाहिए, बट उसने कितने दिन तक वर्क किया है, उसने 292 डेज के लिए वर्क किया है। इसको भी माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी अपनी अनयूज्ड लीव्स, ओके। अभी उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे हम लोग, सैलरी टू बैंक अकाउंट 30 लाख सैलरी भी देंगे हम उसको, और साथ में उसके जो अनयूज्ड लीव्स है उसको भी हम कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे, ओके। तो हमारा वो साल में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टोटल कितना रिकॉर्ड होगा, 30 लाख प्लस लीव कंपेंसेशन वाला अमाउंट, तो 30,20,000 का हम लोग का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ओके। निरंजन है एंड ही इज वर्किंग विथ इन्फोटेक, ठीक है। और हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि उसकी 2021 में सैलरी है 30 लाख, 21-22 में भी सेम। फिर नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो है उसके 300 डेज है। फिर लीव उसको 10 डेज की अलाउड है, और उसने लीव 7 डेज की ली है 2021 में, और 13 डेज की लिए लीव ली है 21-22 में। और लीव्स अनयूटिलाइज्ड कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर इज 3 डेज, ओके। तो यहाँ पे ही पता चल रहा है देखो कि उसने कम लीव ली है और फिर उसने सेकेंड ईयर में यूटिलाइज कर लिया, यहाँ पे यही लिखा है। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि इन्फोटेक को ऐसा लग रहा है कि 30 लाख जो है ना वही अमाउंट दोनों साल में रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज जो करंट ईयर की लीव है वो नेक्स्ट ईयर लेने वाला है, अलग से अकाउंटिंग करने की क्या जरूरत है, वैसा इन्फोटेक क्वेश्चन में बोल रहा है। Now we have to suggest Infotech Limited कि whether the accounting treatment is correct or not. So accounting treatment इनकी गलत है, बिकॉज देखो ये जो लीव जो है अनयूज्ड लीव जो है वो 21-21 में अराइज हो रही है, तो उसके रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होगी वो हम लोग यही साल में करेंगे, ओके। हम अपने अक्रूवल कॉन्सेप्ट को याद करेंगे। हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी चीज या तो सर्विस आप जिस साल में देते हो उसके रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग एंट्री होती है वो आप वही साल में करोगे जिस साल में आप वो सर्विस या तो आप कोई चीज दे रहे हो, ठीक है। सो देखो ये जो लीव्स है वो हमें पता है कि ये साल की है, और हमें पता भी है कि उसको नेक्स्ट ईयर तो हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो क्या करेंगे, हमें अगर ये चीज पता ही है तो अभी उसका प्रोविजन बना के रख देंगे, और जब हमें उन उसको पे करना होगा तब हम उसको प्रोविजन में से लेस कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही इसमें करना है, इजी है बहुत ही ज्यादा। तो अभी देखो, पहले लिखना है कि ये गलत है, फिर देखो सैलरी पर डे निकालेंगे हम लोग, इजी हम लोग का। फिर है कि वो ये नंबर ऑफ डेज वाला निकाल लेंगे कि आइडियली उसको सैलरी कितने डेज काम करने के लिए मिल रही है। तो 290 डेज के लिए उसको 30 लाख की सैलरी मिल रही है। फिर वर्क डन बाय हिम, उसने तो सिर्फ 7 दिन की ली है, तो आइडियली तो उसने 293 डेज का काम किया है, तो उसके अनयूज्ड लीव जो है वो 3 डेज की है। अभी ईयर 1 में हम लोग कैसे करेंगे, मतलब 2021 में कैसे अकाउंटिंग करेंगे, सैलरी तो पूरा देंगे हम उसको। ओके, और जो हमें लीव कंपेंसेशन उसको देना है, ओके, तो उसका हम लोग प्रोविजन बना लेंगे। अभी देखो 3 डेज की जो है उसकी अनयूज्ड लीव है, इंटू सैलरी पर डे 10,000, तो इतने तक का हम लोग प्रोविजन बना लेंगे। ओके, और ईयर वन में हम लोग का टोटल 30,000 का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट किए हैं ईयर 2 के। अभी ईयर 2 में कैसे अकाउंटिंग होगी, देखो वापस ये डेज वाला देखना है आपको, इजी है। और अभी इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, देखो हम लोग ने जो प्रोविजन बनाया था उसको रिवर्स कर देंगे, और सैलरी को फिर 29,70,000 से ही डेबिट करेंगे, बिकॉज ये जो है वो कैसा केस है, नॉन वेस्टिंग एक्यूमुलेटिंग वाला है। ओके, तो इसमें सैलरी के अगेंस्ट हम लोग एडजस्ट करते हैं, और फिर बैंक अकाउंट को हिट कर देंगे, और हम लोग का ईयर 2 में फिर 29,70,000 का ही एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, ना ही 30 लाख का जो इन्फोटेक कर रहा था। ओके,